یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں کا کوئی غریب یا محتاج اس کے در سے خالی نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب نہ صرف اس کے گاؤں کے بلکہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اس کے گھر کے باہر قطاریں لگاتے اور بس اس کا انتظار کرتے کہ وہ آئے اور سب کی مدد کرے۔ لیکن بیوی کو یہ سب پسند نہ تھا۔ ایک دن وہ بولی، عبداللہ، تم یوں ہی مال لٹاتے رہے تو ایک دن ہم بھی انہی کی طرح بھوکے ننگے ہو جائیں گے۔ کم از کم اپنی سخاوت کو اپنے گاؤں کے لوگوں تک محدود رکھو۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بیوی، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی جبکہ اس نے مجھے دیا تھا۔ بیوی نے سخت لہجے میں کہا، اس رفتار سے تو جلد ہی ہم بھی محتاج ہو جائیں گے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا مگر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیرا دیا ہوا رزق کبھی بند نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس کی جیب بالکل خالی ہو گئی۔ دکان بند کرنی پڑی اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ شاید بیوی صحیح کہہ رہی تھی، اگر میں اتنا نہ خرچ کرتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ مگر فوراً ہی اس نے خود کو ٹوکا، نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو میں وہ بھی کسی غریب کو دے دیتا۔ غربت آ گئی مگر عبداللہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بیوی دن رات تنے دیتی، دیکھ لیا، ہم بھی انہی فقیروں جیسے ہو گئے جن پر تم ترس کھاتے تھے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بیوی، ہمارے پاس صحت تو ہے، یہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بیوی طنزیہ ہنس پڑی، مجھے پیسوں سے غرض ہے، جا کے کچھ کما کر لاؤ، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ عبداللہ نے برا نہ مانا، وہ جانتا تھا کہ وہ عیش و آرام کی عادی ہے۔ خود اسے بچپن میں کڑے فاقے دیکھنے پڑے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھتا تھا۔ ایک دن وہ بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک جنگل میں آگ لگ گئی۔ اس نے دور سے ایک چھوٹی سی سانپنی کو آگ میں پھنسا دیکھا۔ دل میں رحم آیا، جان پر کھیل کر آگ میں کودا اور اسے باہر نکال لایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سانپنی انسانوں کی طرح بولی، میں کوئی عام سانپ نہیں، جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، اس کا بدلہ ضرور دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عبداللہ کو اپنے باپ کے محل لے گئی۔ بادشاہ جنات نے کہا، ہم تمہیں مال و دولت نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہمارے پاس نہیں، مگر تمہیں ایک نایاب علم عطا کرتے ہیں۔ آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ جب عبداللہ نے رضامندی ظاہر کی تو بادشاہ جنات اس کے قریب آیا۔ اس کے دونوں کانوں میں ہلکی سی پھونک ماری اور بولا، اب تم جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہو۔ تمہیں ایسی باتیں سننے کو ملے گی جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، مگر یاد رکھنا، کبھی ظاہر نہ کرنا کہ تم ان کی باتیں سمجھتے ہو، ورنہ وہ تم سے ڈر جائیں گے اور تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ راز دل میں رکھنا۔ یہ کہہ کر اچانک سب منظر غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے پلک جھپکی تو وہ پھر اپنی بکریوں کے پاس کھڑا تھا۔ نہ کوئی محل تھا، نہ جنات اور نہ بادشاہ۔ وہ سوچنے لگا، شاید یہ سب خواب تھا، لیکن کتنا عجیب اور دلچسپ خواب تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے وہ ایک بڑی سی جھیل کے پاس سے گزرا۔ وہاں اس نے 2 خوبصورت مچھلیوں کو اچھلتے اور کھیلتے دیکھا۔ ایک نے دوسری سے کہا، اگر جھیل کے بیچ تلے وہ پرانا صندوق نہ ہوتا تو ہم اس بڑی مچھلی سے کبھی نہ بچ پاتی جو ہمیں کھانے کے لیے پیچھے پڑی تھی۔ دوسری نے جواب دیا، ہاں، یہ صندوق تو صدیوں پرانا لگتا ہے، پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ جنات کی شہزادی والی بات سچ تھی۔ اس کے دل میں تجسس جاگا، آخر اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ فوراً جھیل میں غوطہ لگا کر نیچے پہنچا۔ وہاں واقعی ایک بھاری سا پرانا صندوق تھا جس پر زنگ آلود قفل لگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے کھینچ کر کنارے تک لایا، پھر سوچا اب اس قفل کو چابی کی ضرورت نہیں،
एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से मारा, कुफल टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अंदर लाल जवाहरात और हीरों की चमक दमक थी। अब्दुल्लाह ने इतना ही निकाला जितना जरूरत थी और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफन कर दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीवी, आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूँ जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहाँ से मिला? अब्दुल्लाह को बादशाह जन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश रहा। बीवी ने कंधे अचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अकल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल्लाह ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लूटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्लाह को बीवी की नाशुक्री पर दुख हुआ। दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उन के लिए एक पनाहगाह बनाएगा, जहां वो खाना खा सकें और ज़रूरत का सामान ले सकें। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बगैर वो फिर झील पर गया, सारा खजाना निकाला। गाँव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी, इस पर गरीबों के लिए पकी सराय और बावर्ची खाना बनाया। इसने नेक और दीनदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब ना सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूरों को रोजगार मिला और कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल्लाह अपनी बीवी के साथ बीवी के मैके जा रहा था। वो दोनों एक छुकड़ा गाड़ी में बैठे थे जिसे दो खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में अब्दुल्लाह ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजी ना कर। दूसरे खच्चर ने पूछा, क्यों भाई? जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताज़ा गीला जो खरीदा है वो भी खा लेंगे। पहला खच्चर बोला, भाई, भूख ने तुम्हारी अकल मार दी है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि गाड़ी में बीवी के पीठ में बच्चा है? अगर हम तेज चलेंगे तो झटकों से गाड़ी हलेगी और शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस लायक नहीं कि हम इसके साथ ज्यादती करें। इसने कभी हमारा हक नहीं मारा। अब्दुल्लाह ये बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि वो बाप बनने वाला है। वो बीवी के करीब झुका और आहिस्ता से कहा, मुबारक हो बीवी, तुम्हारे पीठ में हमारा बच्चा है। बीवी हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इल्म हुआ है। अब्दुल्लाह ने हंसते हुए कहा, बस महसूस हो गया था। बीवी ने दिल ही दिल में सोचा, ये आदमी मुझसे कोई राज छुपा रहा है। 1 महीना पहले खजाना मिला था मगर नहीं बताया कहां से, और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में नाकाबिल यकीन लगती हैं मगर बाद में सच निकलती हैं। अब से मैं इसे गौर से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्लाह के पास आया और बोला, मेरे पास लेमू और माल्टे की बड़ी खीप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है, तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्लाह ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने लेमू और माल्टे कौन खरीदेगा? अगर ये सड़ गए तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्लाह ने इत्मीनान से कहा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। बाद में वो अकेला बैठा सोचने लगा, शायद बीवी की बात दुरुस्त हो, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ही ये सौदा किया। उसी दौरान 2 चिड़ियां खिड़की पर आकर बैठ गईं। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। अब्दुल्लाह ने दिल में कहा, अभी ये लेमू और माल्टे नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूँ क्या होता है। बीवी हंसती और तने देती, चलो पागल,
बीच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर कहता, बीवी, बेहतर है तुम सर्दी की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वाकई सर्दी मामूल से पहले और सख्त आ गई। नज़ला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टरों ने लोगों को लेमू और माल्टे खाने का मशवरा दिया। उनका दाम आसमान को छूने लगा और बाजार से गायब हो गए। ताजिरों को खबर मिली कि अब्दुल्लाह के पास एक बड़ी खीप मौजूद है तो सब सोने और चांदी के संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल्लाह ने बीवी से कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहाँ गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। इसने बारी बारी सबको माल बेचा। शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। बीवी खुश तो थी मगर फिर भी उसके दिल में वसवसा था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि अब्दुल्लाह ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है। वो डर गई कि कहीं लेमू और माल्टे का मुनाफा भी फुकरा पर ना लगा दे। वो फौरन इसके पास गई और तेज लहजे में बोली, क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अब्दुल्लाह ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतना सोना और चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का नवाला छीन लें? बीवी ने कहा, अल्लाह इन्हें भी रिस्क दे और अता करे जैसे उसने तुम्हें रिस्क और अता दिया। फिर इसने तेजी से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई राज छुपा हुआ है और अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। ये सुनकर अब्दुल्लाह घबरा गया। उसने दिल में कहा, मैं उसे अपना राज बता दूंगा क्योंकि मर जाना 1000 गुना बेहतर है इस इल्जाम से जो जिंदगी भर मेरे साथ चमट जाए। लोग तो जो सुने यकीन कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा जैसा कि जन्नत के बादशाह ने कहा था, और फिर गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बीवी को अपना राज बताने के बदले वो अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वो अपनी बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वो जमीन जिस पर उसने गरीबों का मरकज और पनाहगाह बनाई थी वो वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर इसने बीवी से कहा, बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब ना आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं क्योंकि हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं। अब्दुल्लाह गरीबों और यतीमों के मरकज में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदा मंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजिरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मजीद अमीर हो जाए। इसने सोचा, मैंने कभी शौहर की वो जिंदगी पसंद नहीं की जिसमें वो मुझे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे मैं उसने बहुत बड़ा घर तामीर कर लिया, सोना चांदी जुमा कर ली और मौसीकी और गाने के आलात से भर दिया। लेकिन सिर्फ ख्वाब व ख्याल से कुछ नहीं होता। बड़े ताजिरों ने तजरिबात से नुकसान पहुंचाया और सारा माल कब्जे में कर लिया। इसके पास कुछ ना बचा और अल्लाह ने उसे इन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो शौहर को तरस खाने से रोकती थी। इस दौरान वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वो छीने महल के सामने बैठी रोती और नोहा करती, ये सोचे बगैर कि कहाँ जाए क्योंकि सब कुछ लूट चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह ना करता मगर गरीब आकर इसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ ना लेती रही। 3 दिन तक ये हाल रहा। फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्लाह वहां से गुजरा और देखा कि इसके घर अब कोई और रह रहा है और बीवी एक बदहाल और बदबूदार भकारन बन चुकी है। वो इसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने मरकज के पास बनाया था। उसने 1 महीने तक इसकी देखभाल की, यहाँ तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा जन्म दिया। अब्दुल्लाह ने देखा कि अब वो ना शिकायत करती है और ना किसी चीज पर बेजारी दिखाती है।
अगरचे जिंदगी निहायत सादा थी, अब्दुल्लाह दूसरे मजदूरों के साथ मरकज के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन बीवी इसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्लाह ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वो मुस्कुरा कर बोली, तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिस्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर इसने नरमी से कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब्दुल्लाह मुस्कुरा कर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफ़ी है। हम उसी के साथ वाली ज़मीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत ही दौलत है और वही सबसे बड़ी नेमत है।